Om Namah Shivaya. I bow to Lord Shiva, who resides in all of you as your inner divinity. Please remember, whether we are happy or not so happy, the divine light is fully shining within us. ऊपर की ज्योत हमारे अंदर पूरी विराजमान है. And to discover this reality is the goal of Kashmir Shaivism. Kashmir Shaivism gives us perfect harmony in material life as well as in spiritual life. What is the uniqueness of Kashmir Shaivism? It accepts us as we are. Everybody is welcome and everybody can tread the path of divine way without any restriction, without any difficulty. Please remember, it gives great focus on human being because God realizes the divine nature by His grace. And Kashmir Shaivism gives us guidance. It tells us, oh dear, where you are, whether you are at the lower level only or you have reached the higher level of consciousness. Kashmir Shaivism makes us from outward to within. हमें बाहर मुखी से अंतर्मुखी की तरफ ध्यान दिलाता है. And this great wisdom has unique meditation techniques called Vijnana Bhairav. These are subtle, wonderful and internal ways of reaching the divine consciousness. Most of my friends would have read Shiv Puran. What Shiv Puran says, Lord Shiva tells, whenever there is decline in dharma, I come in the human form to enlighten the world. Same is the message in Bhagavad Gita. You may be aware of the second chapter of Bhagavad Gita, Yada Yada Hi Dharmasya. Lord Krishna says, when there is decline of dharma, I come in the form to enlighten the world. Let me quote the Urdu version of this shloka. Remember one word called Tanazul. Tanazul means decline. So what Lord Krishna says, Tanazul par jis waqt aata hai dharam, अधर्म आके करता है बाजार गरम. अरे ये अंधेरा जब देख पाता हूँ मैं, तो इंसान की सूरत में आता हूँ मैं. Now what happened? They say when Kaljug came, beginning of the Kaljuga, there was decline of dharma. धर्म की हानि हुई and all धर्म was used only for material things. So जो साधु संत थे, all sages and saints, they got scared. Oh, dharma is used for adharmic things. So they went into hiding. ऋषि मुनि गुफाओं में भाग गए कि हमारे धर्म का कोई यूज ही नहीं है, धर्म का प्रचार ठीक तरह से नहीं हो रहा है. फिर क्या हुआ? लॉर्ड शिवा, being ever merciful, he asked Durvasa Rishi and initiated him in this great vidya called Shaiva Agamas or Kashmir Shaivism. Initiated him in Mount Kailash. Mount Kailash पर दुर्वासा ऋषि को भगवान शिव ने इसका ज्ञान दे दिया. इससे ये धर्म आगे बढ़ गया. अब मैं आपको ये इसकी एक जरा प्लीज फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड ऑफ दिस नॉलेज इज कॉल्ड शक्तिपात. शक्तिपात पर आप ध्यान दीजिए. व्हाट इज शक्तिपात? शक्तिपात इज डिसेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस. ये एक सेंटर थीम है इस शैव आगम का. शक्तिपात. शक्तिपात इज डिसेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस विच इज इरेस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमन एफर्ट. कहते हमें कैसे प्रभु की उपलब्धि हो जाए, हमारी नैया कैसे पार हो जाए. हाउ वी गेट सेल्फ रियलाइजेशन? क्या हमारे प्रयास से? नहीं, हमें रियलाइजेशन मिलेगी ईश्वरीय अनुकंपा से. शक्तिपात कहता है कि डिसेंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, ईश्वरीय अनुकंपा जो मनुष्य के प्रयास से बाहर है. इट डिपेंड्स ऑन हिज मर्सी. प्रभु की ही अनुकंपा से हम प्रभु की तरफ जा सकते हैं और ये प्रभु की मर्जी है, ना कि हमारी मर्जी है. प्रभु किस पर भी अनुग्रह कर सकते हैं. बहुत एग्जाम्पल है, जैसे ड्रिंकार कैन बिकम डिवाइन पर्सन. रत्नाकर डाकू बिकेम वाल्मीकि ऋषि. जिस पर प्रभु अनुकंपा कर सकते हैं वही पार लग सकता है. ये एक बेसिक प्रिंसिपल है. इस पर हमारे आचार्य अभिनवगुप्त समझाते हैं, ये जो शक्तिपात है, ईश्वरीय अनुकंपा, वो हर एक में है.
उसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। कहते अरे भक्तजनों सुनो, हर एक में अनुकंपा है, मगर क्या है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अलग अलग मनुष्य को अलग अलग स्पिरिचुअल लेवल्स पर पैदा होते हैं। एवरी डिवाइन बीइंग हैज इज वेरियस लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो आचार्य अवनुगुत बोलते हैं कि अगर आपके पास असीम कृपा है, वी कॉल इट तीव्रतम शक्तिपात, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं, गुरु नानक देव, संत कबीर वगैरह वगैरह। तो इसलिए जो हमारा प्रयास है अनुकंपा पाने के लिए, हमने इसको 4 कैटेगरीज में बांधा है। सबसे लोअर कैटेगरीज को बोलते हैं क्रिया मार्ग, अनुभोपाय, जहां पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, मेडिटेशन सब कुछ इसमें होता है। पर हमारा बेसिक फोकस क्या है, इस 4 लेवल से हम आगे बढ़ेंगे। लेवल नंबर 3 उसको हम बोलते हैं शाक्तोपाय, ज्ञान मार्ग। जब हम बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाए, तो जैसे ऑटोमेटिक मेडिटेशन, जैसे मध्य नाड़ी विकासा, इनर चैनल अवेकनिंग, ये शाक्तोपाय का लेवल है। इसके हम और तरक्की करते हैं, हम बोलते हैं थॉटलेस डिजायरलेस स्टेट, कॉल शांभोपाय। तो उसके आगे होता है अनुपाय, जहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, यो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें ईश्वरीय अनुकंपा के लिए क्या करना चाहिए, मतलब यह है हमें अपना पात्र साफ करना चाहिए। आवर स्पॉट, इट शुड बी स्पॉटलेस। आवर यूटेंसिल, आवर पात्र टू रिसीव द ग्रेस शुड बी स्पॉटलेस, बिल्कुल क्लीन रहना चाहिए। इसलिए हम ये समझाते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि अगर हमें इस पर ध्यान करना है, इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लीज इम्बाइब। पहला इसमें प्रिंसिपल है शिव समावेश, चार्जिंग विद शिवाहुड। पहले हम कहते हैं कि ध्यान रखिए, हमें ह्यूमिलिटी, लव और कंपैशन शुड बी आवर नेचर। ये हमारी बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। जिस आदमी मनुष्य को इस ज्ञान पर जाना है, उसकी बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, नेचर ही होना चाहिए, ह्यूमिलिटी, लव एंड कंपैशन। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना जीवन, अपनी जीवनी, अपनी ईश्वरी लीला में हमें समझा दिया है कि हमेशा ह्यूमिलिटी, लव और कंपैशन याद रखना चाहिए। क्योंकि लव और कंपैशन क्यों है कि हर एक में शिव है। वी आर सेलिब्रेटिंग शिवाहुड इन अदर्स। ये तो पहला याद है। सेकंड क्या है, वी शुड हैव 100% फेथ इन योरसेल्फ। अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने पर विश्वास नहीं है, आपको किसी दूसरे पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि भगवान आपके अंदर है। सो ऑलवेज हैव फुल फेथ इन योरसेल्फ। इसमें एक जरूरी बात है, इट इज अ डिवाइन ट्राइंगल। ऊपर भगवान शिव है, राइट साइड इज अ गुरु और टीचर जो आपको गाइड करेगा, ब्लेस करेगा। लेफ्ट मीन्स योरसेल्फ, मगर आपको ही आगे चलना उस मार्ग पर। सो अपना विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। यू शुड हैव 100% फेथ इन योरसेल्फ। मैं ये कहता हूं, आप किसी का मत सुनो, जो आपको मन माने वही सच्चा ज्ञान है। व्हाट इंस्पायर्स यू इज अ ट्रू विजडम, इज अ ट्रू नॉलेज। जो आपके अंदर ज्ञान समाएगा वही सच्चा ज्ञान है। सेकंड क्या बोलते हैं हम, यू मस्ट लव योर इनर चाइल्ड। अपने आप को प्यार करो, क्योंकि आप तो यू आर ए डिवाइन टेम्पल, आप तो मंदिर हो भगवान के। बी हैप्पी, बी इन गुड मूड। हमेशा अगर बीमार है तो दवाई खाओ। कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल सुखी रखो, फिट रखो। अगर आप अपने से प्यार नहीं करोगे, आप किसी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चीज क्या है कि सब चिंतित है, अरे कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हम कहते हैं कि कल भी पॉजिटिव होगा, परसों भी पॉजिटिव होगा। कैसे होगा, लॉर्ड शिवा इज द डूअर, लॉर्ड शिवा इज एंजॉयर। शिव ही दाता है, शिव ही भोगता है। अगर हम कल परसों हर एक कार्य शिव के नाम पर ही करेंगे, अरे प्रभु करता है, आप आनंद में रहेंगे। याद रखिए, अगर बाधाएं भी होगी, देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, वी कॉल इट तिरोधान क्रिया ऑफ लॉर्ड शिवा, उसका निवारण भी शिव करेगा। You believe me, many people have told me that their thinking changed, they became comfortable. आप आनंद में रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे भगवान के नाम पर ही कहेंगे। बाधाएं होगी, उसका निवारण भी देखेंगे, भगवान कर रहा है। कभी कभी काम नहीं होता है, उसमें भी हमारी ही भलाई है। मगर हम सोचेंगे हम ही करने वाले हैं, फिर क्या होगा। कहते हैं हम मूर्ख जो
काम बिगाड़े रामो काज बनाए रे, हम तो काम बिगाड़ेंगे बिगाड़े, राम काज बनाएगा। तो ये मेरा पहला फोकस है। Humility, love and compassion should be your nature, and have 100% faith in yourself, love yourself and leave everything to the Lord. Lord is the doer, Lord is the enjoyer. ये एक पहला क्वालिटी है। सेकंड, हम क्या करते हैं, हम जो हमारा मन है, मन चंचल होता है, इस पर हम एक प्रोसेस है कॉल्ड शुद्ध विकल्प, प्योर थॉट कंस्ट्रक्ट। ये सिखाते हैं मन को कैसे हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। सप्रेशन नहीं करना माइंड को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, मंत्र से उसके मन को पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, तो और मन भी विल बिकम डिवाइन। एंड देन वी टीच ऑफ वेरियस डायरेक्शंस, वेरियस मेथड्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन ऑन अवर प्राण शक्ति। हम विज्ञान भैरव धारणा की क्रिया से यू विल बी ए वेरी ब्लिसफुल, वेरी पॉजिटिव। तो एंड मैं यही करूंगा मुझे कि इस मार्ग में आपका बहुत स्वागत है। यू विल एंजॉय डिवाइन ब्लिस, perfect harmony in spiritual and material life. Concluding, मैं माता ललेश्वरी के इस वचन से इस कंक्लूड करता हूँ अपना प्रवचन, जो भी हमारा शेयरिंग है आपके साथ। कहते हैं कि इस वचन में पूरा कश्मीर शैव दर्शन का निचोड़ है। कहते हैं, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, अरे स्वयं ही गट गट वासी है। लॉर्ड शिवा परवेट्स एवरीवेयर, शिव फैलाए सूक्ष्म जाल, स्वयं ही गट गट वासी है। अरे जीवन में ही तुम पहचानो, मर के क्या पहचानोगे। चिंतन से तुम गहन मनन से बात तत्व की जान लो। खुद को खुद से अलग करो, क्या नश्वर है क्या अविनाशी है। शिव फैलाए सूक्ष्म जाल। लॉर्ड शिवा ब्लेस ऑल माय फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। My divine friends, I am Virendra Kazi. Let me tell few words about myself. I am born, brought up, educated in Kashmir. Lot of saints and sages would visit our house, and mystics, they have inspired me and blessed me to know the higher wisdom and greater purpose of life. My first passion was the mystic poetess of Kashmir, Laleshwari, popularly called Lalla. In fact, our organization is named as Laleshwari International Trust. Then I had a great stint and career in a leading public sector of India. Now, after my work on Laleshwari expresses the teachings of Kashmir Shaivism, a subtle spiritual wisdom. So my deep interest was to explore the subtle nature for benefit of common people, so that they can adopt it in their very life. I am associated with Ambience series films Kashmiri channel to propagate this great wisdom. We will be sharing more and more spiritual knowledge and interactive discourses. So I request my friends, please subscribe, like, share and comment to get more interactive videos on Kashmir Shaivism. Please subscribe to our channel.